session. Good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon, sir. We are fine, sir. Good What about afternoon, you? sir. What about you? What about you? I'm also fine, beta. In this session, we have to read a story. What is already assigned to you all. You all were asked to read the story and Yes. write the answer based on that. So in this session, we are going to recheck that ki how many from you all have written the correct answer. तो अभी क्या करेंगे? First of all, Yes. we would be reading the story. और उसके बाद जो उससे क्वेश्चन उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे also we would be writing the answer of that questions of those questions. And meanwhile you all can check that ki what the answer you have written for those questions, whether they all are correct or incorrect. अगर गलत होंगे तो आप उसको सही कर सकते हैं और कहाँ पे क्या अगर कोई डाउट है तो उसको भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं. So let us open the book and in the comprehension junction we have to read this story. But this story has been taken from the Yes. this story has been taken from the Panchtantra. So this is a Panchtantra story. It's very short. So let us check that how many have comprehend the story and can already have given the answer for the question. So first of all, you all have to read the paragraph first. Aman Verma, Yes, sir. you have done in the morning. Saurabh Kanojia, you have to read this first paragraph. Sir, there lived a man named Saurabh Saurabh Kanojia which is not born connected. every day he would. Saurabh Kanojia is not connected well. His voice is not coming properly. So Atul Chauhan, read. You have to read. Read the first. There lived a man named तो अतुल चौहान को पढ़ना ही नहीं आता क्या? चलिए ठीक है, अतुल चौहान नहीं पढ़ पा रहे हैं. रुचि, आपकी बारी. देखता हूं कौन पढ़ता है. There lived a man named Sabir. रुचि को भी नहीं पढ़ना आ रहा है प्रॉपर. रुचि भी नहीं पढ़ पा रही है. क्या बात है? इनको जब पढ़ना ही नहीं आ रहा तो मतलब क्या इसका निकाले होंगे? ये कॉम्प्रिहेंशन तो खत्म, दूर की बातें हैं. दे और मतलब मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीड द लाइन. उस लाइन को पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसका मतलब क्या निकाले होंगे? किसी दूसरे बच्चों का आंसर देख करके हो सकता है छाप लिए हों. चलिए अनुप्रिया आप पढ़िए. There lived a man named Swabhav Kripna, which means a born miser. Every day he would. बेटा अनुप्रिया, एक Yes, sir. स्टेप आपका जैसे सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए, लेट मी एलाबोरेट, लेट मी explain the things. Okay, sentence by sentence we would be Yes, sir. completing Yes. this story. There lived a man named Yes, sir. Swabhav Kripna, which means a born miser. there lived a man, एक आदमी रहता था जिसका नाम क्या था? स्वभाव कृपना. जिसका एक मतलब इसके नाम का एक मतलब है a born miser. यानी माइजर मीन्स क्या होता है? कंजूस. और सिर्फ नाम ही नहीं, वो स्वभाव ही उसका था. क्या था उसके बाद? वो क्या करता था? दिव्या, आकांक्षा बेटा आप पढ़िए. यू आर कनेक्टेड वेल. आकांक्षा, read from here. यस आकांक्षा बेटा आप यहां से पढ़िए जरा. आकांक्षा, दिव्या आप पढ़िए बेटा यहां से.
Sir, every day he would beg for food. Okay, stop. Every day यानी प्रत्येक दिन he would beg for food. वो क्या करता था? वो he would beg for food. वह भोजन के beg means क्या होता है? एक beg से begging बना होता है. Beg. What do you understand by beg? भीख मांगना सर भीख भीख मांगना, भिक्षा मांगना, सर भीख सर भीख मांग भीख मांगना. Yes, sir. ठीक है. Every day he would beg for food. वो हर दिन भोजन के लिए भीख मांगता या भिक्षा मांगता. He would come back home. वो क्या करता? He would come back home, cook some food, cook some of the rice that he had collected and put the rest of it in a pot. वो क्या करता? He would come back home. जब वो भिक्षा मांगने के बाद, यानी भोजन के लिए जो भी इसको खाना रहता है, वो हर दिन फूड के लिए भीख मांगता. भीख मांगने के बाद, भिक्षा मांगने के बाद he would come back home. वो घर वापस आता and cook some of the rice that he had collected. वो जो कलेक्ट किया हुआ राइस है, जो इकट्ठा किया हुआ, जो भिक्षा मांग करके जो उसने स्टोर किया है, जो कलेक्ट किया है राइस, उस राइस में से थोड़ा बहुत राइस वो पकाता एंड जो रेस्ट ऑफ द राइस होते, जो बाकी बचे हुए रहते, वो क्या करता? एक पॉट में रख देता. He would then hang the pot on a peg on the wall. ये peg means क्या होता है? खूटी Sir, Peg on the wall. इसी से ही क्लियर हो जाना चाहिए. Then he would then hang. उसके बाद क्या करता है? वो हैंग कर देता, यानी टांग देता. क्या? Hang the pot. pot को हैंग कर देता on a peg on the wall. एक दीवार में लगी हुई एक काटी में वो हैंग कर देता, यानी लटका देता, टांग देता. One night, एक रात की बात है, he placed his cot underneath the pot. बेटा यहाँ पे कुछ हो सकता है कि शायद he placed his pot होना चाहिए. Actually, underneath the cot means क्या होता है? What do you understand by cot? sir, खाट. Cot means होता है Sir, खाट. खाट यानी खटिया, जिसको हम गांव में बोलते हैं. Sir, खटिया. ओके, यानी जो उसका बिस्तर था, खाट था, जिसपे वो सोता था, बेड था, जो भी आप कह सकते हैं. उसी के नीचे उसने क्या किया? एक दिन वो पॉट जिसमें वो राइस ला करके रखता था, वो रख दिया एंड ले डाउन टू स्लीप. और उसी पे लेट गया सोने के लिए. किस पे लेट गया? कॉट पे. क्लियर? वो उसने अपना कॉट क्या किया? अपने कॉट को, अपने खटिया को उस पॉट के ऊपर, यानी पॉट को उसके खटिया के नीचे रख करके उसी खटिया पे सो गया, उसी खाट पे वो सो गया. फिर क्या होता है? लाइंग ऑन द कॉट, खटिया पे सोचते हुए, नहीं खटिया पे लेटे हुए. लाइंग मतलब लेटना. ओके, am I audible to you all properly or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लाइंग Yes, sir. यस सर खाट पे पड़े हुए, उस खाट पे लेटे हुए क्या होता है? He looked up the pot and thought. He looked up the pot. जो उस पॉट था उसकी तरफ देखता है और सोचता है. क्या सोचा उसने? He looked up the pot. उसने पॉट की तरफ देखा, देख करके सोचा and thought. सोचा. क्या सोचा? That pot is indeed brimming with rice. That pot is indeed brimming with the rice. ये indeed means क्या होता है? Sir, my tell. वास्तव में क्या होता है? Yes, वास्तव में वास्तव में जो आपका ये राइस है, जो आपका पॉट की जो राइस है, कहाँ पे पढ़ा जाता है? That pot is indeed brimming with the rice. जो राइस से भरा हुआ, वास्तव में मतलब एक तरीके से सूखा हुआ राइस था, वो बहुत अच्छी चमक रहा था, अच्छा लग रहा था उसको. Now, if there should be a famine. Now, if there should be a famine, अगर कोई एक अकाल पड़ जाता, famine means एक तरीके से अकाल पड़ना. ओके, अकाल किसको? Sir, सूखा. ड्राई हो जाना, सूखा पड़ जाना, यानी खाने के लिए. Drought. If there should be a famine, कहता अगर वो अकाल पड़ जाता, I would certainly
मेक 100 रुपीज फ्रॉम इट। उस चावल के जो पॉट है उसकी तरफ देखते हुए वो सोचता है कि अगर कहीं पे अकाल पड़ जाता तो ये चावल से मैं क्या करता, आई वुड सर्टेनली मेक 100 रुपीज फ्रॉम इट। मैं इससे कम से कम 100 रुपए बना लेता। कैसे बनाता, उसको बेच करके। ओके Yes, sir. Yes, sir. वो 100 रुपीज जब Yes, sir. 100 रुपीज बनाने के बाद क्या करता, और भी इतना ही नहीं सोचा, बहुत कुछ सोचा उसने। क्या क्या सोचा, we would be reading in the story. And with this मतलब with the 100 rupees, with 100 rupees I shall buy a couple of goats. मैं क्या खरीद सकता था, I shall buy a couple of goats. मैं couple of goats खरीद सकता था, यानी बकरियों के जोड़े को, यानी कम से कम 2 बकरियों के जोड़े को खरीद सकता था। और बकरियों के जोड़ों को, जब बकरियों के जोड़े को खरीदता तो क्या होता, दे विल हैव यंग वंस एवरी 6 months। वे हर 6 महीने में करीब बच्चे देते, उनके यंग वंस होते। एंड शैल आई हैव अ होल हर्ड ऑफ गोट्स। और ऐसे में आई शैल हैव अ होल हर्ड ऑफ गोट्स, पूरे हमारे पास बकरियों का एक झुंड होता, एक ग्रुप होता। ग्रुप ऑफ गोट्स को क्या बोलते हैं, हर्ड ऑफ गोट्स। ओके Heard of. और इस तरीके से आई शैल हैव अ होल हर्ड ऑफ गोट्स, हम मेरे पास एक कंप्लीट पूरी तरीके से एक बकरियों का एक झुंड होता। फिर क्या होता, देन सीक्वेंस वर्ड है देन, फिर क्या, तब विद द गोट्स के साथ, लेट मी कनेक्ट द डिवाइस विद अनदर वन, सॉरी बार बार कट जा रहा है Sir, जस्ट voice नहीं आ रही. हाँ Sir. now let us Sir, read this ahead. is not coming. Now I hope everybody are listening to me. Am I audible to you all now? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I shall buy a couple Yes, of sir. goats. ये सारी चीजें हो गया था। I shall have a whole herd of goats, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद क्या होता है, then with the goats के साथ I shall buy cows, मैं गाय भी खरीद लेता। As soon as they have calves, और जितना ही जल्दी हो सकता था उनके भी बच्चे होते, बछड़े होते। गाय को बछड़े ही तो होंगे, बछिया जो भी है। गाय के बच्चों को क्या, Yes, sir. Sir, calf. Call. Sir, calf. गुड। The car. As soon as they have calves, उनके भी बच्चे होते। I shall sell the calves, हम उसको क्या करते, वो जो calves था यानी उसके बच्चों को बेच देते। और बेचने के बाद क्या करते, then with the calves, उस calves को बेचने के बाद I shall buy buffaloes, with the calves I shall buy buffaloes, मैं भैंस भी खरीद लेता। with the buffaloes mares means क्या होता है, mares Sir, घोड़ी, वेरी गुड। along with उसके बच्चे, भैंस के साथ में घोड़ी भी खरीद लेता है। when the mares have foaled, ये मेयर्स के बच्चे, घोड़ी के बच्चों के को बोलते हैं। ओके और इतना ही नहीं, आई शैल हैव प्लेंटी ऑफ हॉर्सेस, मेरे पास बहुत सारे हॉर्सेस होते हैं। इस तरीके से वी वुड बी हैविंग प्लेंटी ऑफ हॉर्सेस। प्लेंटी मींस क्या होता है, अधिक, मेरे पास बहुत अधिक घोड़े होते। एंड आई विल सेल देम, और उसके बाद sir, बहुत सारे। आई विल सेल देम, मैं उनको बेचता I sell them for plenty of gold, मैं उसको बहुत अधिक गोल्ड के लिए यानी सोने के लिए बेच देता। with that gold, और वो जो गोल्ड खरीद मिलता, with that gold I shall buy a palatial house, उस गोल्ड से हम एक बहुत ही आलीशान मकान खरीदते। यानी वो सोच रहा है, उस चावल को देखते हुए इतना कुछ सोच लिया। कई बार आप लोग भी सोचते हैं, I shall buy a palatial हाउस, यानी एक बहुत ही आलीशान मकान खरीदता। देन आई विल मैरी एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमेन, उसके बाद मैं बहुत ही एक सुंदर लड़की से शादी करता। वी विल हैव अ सन एंड आई शैल कॉल हिम, नाम ही सोच लिया, आई शैल कॉल हिम सोमा सारमन। क्या है ये, सोमा आश्रम, तो उस बच्चे का नाम क्या रखते, सोमाश्रम। ही इज ओल्ड इनफ, जब वो बड़ा हो जाता थोड़ा सा, आई विल स्विंग हिम ऑन माई नीज, मैं उसको अपने नीज पे खिलाता। आई शैल होल्ड हिम इन माई आर्म्स, मैं उसको अपने हाथों बाहों में ले पकड़ता।
एंड स्विंग हिम हाई, और उसको बहुत ही ऊंचा आराम से उसको स्विंग करता है, झुलाता खिलाता। कैरिड अवे बाय हिज ड्रीम, अपनी ड्रीम को कैरी करते हुए, सोचते हुए क्या किया उसने, स्वभाव कृपना स्विंग हिज फीट सो हाई, वो अपने पैरों को बहुत तेजी से स्विंग किया, यानी हिलाया, मतलब उसी में खो गया पूरी तरीके से। दैट द पॉट ऑफ राइस ब्रोक, और जिससे क्या हुआ, उसका जो पैर है उस पॉट से लग गया, और उसका जो पॉट है, पॉट ऑफ राइस ब्रोक, वो टूट गया। एंड ऑल द राइस फेल ओवर हिम, और क्या हुआ, ओके बेटा स्टॉप। बेटा एक चीजें कंफर्म हो गई, यहाँ पे गाड़ी जा रही है, बहुत ज्यादा ट्रैक्टर्स जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आवाज है, हैव टू वेट। बेटा एक चीजें हैं यहाँ पे, जब आपको शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी क्या हुआ था, यहाँ पे वन नाइट ही प्लेस्ड हिज कॉट अंडरनीथ द पॉट, वो पॉट के नीचे अपना अपना खाट बिछाया था। पॉट क्या था, वो हैंग कर दिया था यहाँ पे। अभी अब यहाँ पे ये पॉट क्या था, किसी खूंटी पे उसने टांग दिया था। यहाँ पे क्या था ना, इन दिस लाइन, he would then hang the pot on a peg on the wall, किसी खूंटी पे उस पॉट को उसने क्या किया, टांग दिया था। और एक रात क्या, वो अपना खाट जो था वो उस पॉट के नीचे बिछाया और सो गया उसी पे। तो उसी को देखते देखते वो इतनी सारी बातें सोचा था, और सोचते सोचते वो बच्चे को खिलाने लगा, उछालने लगा, और ऐसे में क्या होता है, वो इतना खो गया कि he swung his feet so high, वो अपना जो फीट था, अपना पैर था, बहुत तेजी से ऊंचा उछाला। that the pot of the rice broke, जिससे राइस का पॉट था वो टूट गया। and all the rice over him, वो पूरा का पूरा राइस उसके ऊपर गिर गया। और फिर कैसे, फिर तुरंत क्या बोलता है, alas he cried, now how will I play with my child, अब मैं अपने बच्चे के साथ कैसे खेलूंगा। that is the end of the story, and this story has been adapted from the पंचतंत्र। okay, तो स्टोरी फिलहाल अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा सपनों में खो जाना, मतलब इस तरीके से कई बार आप लोग भी खो जाते होंगे। खोया है कि नहीं, कि मैं होता साइकिल होता तो यूं चलाता है, मतलब उसी में गेम खेलते हुए कई लोग हैं बिना पढ़े पढ़ाई ना करते मैं टॉप कर जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं सबसे ज्यादा मार्क्स आते, मुझे रिवॉर्ड मिलता, और यही सब होमवर्क नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे और टॉप कर जाएंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो नो सर, ये पॉसिबल है ना, तो इसी तरह इसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं था, पॉट को देखता रहेगा, टूट भी गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। बेटा अभी आप लोगों ने ये स्टोरी पहले से ही पढ़ा था, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन था, फिलहाल मैंने समझाया, बात अलग है, बट इट वाज सपोज्ड टू डन बाय यू ऑल, आप लोग को स्वयं पढ़ करके इसको समझना था और अपने मर्जी से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे। तो अभी किसी को अगर स्टोरी नहीं समझ में आया होगा स्वयं पढ़ने से, तो अभी मैंने बताया भी, शायद अब उनको समझ में आ गया होगा। नाउ द टाइम फॉर द एक्सरसाइज, अब सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, यू ऑल हैव टू क्रॉस चेक दैट कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट होगा देन यू कैन रिकरेक्ट, आप दोबारा उसको सही कर सकते हैं, यू कैन रीराइट। यस, let us find the answer from the story. The first question is, how did Swabhav Kripna earn his living? How did Swabhav Kripna earn his living? जो स्वभाव कृपना था वो अपना जो उसकी लिविंग थी, यानी उसका जो जीवन यापन करता था, वो कैसे कमाता था, अपना जो दिनचर्या था, अपना जो रोजमर्रा के वो कैसे अर्न करता था, रोजमर्रा की चीजें कैसे अर्न करता था। How did Swabhav Kripna earn his living? सर भीख मांगकर। भीख मांगकर, किसने बोला? यस सर। हाँ बेटा तनिष्का, टेल मी द आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज, भीख मांगकर ऐसे बोल के नहीं, व्हाट यू हैव रिटन, टेल मी योर आंसर। Swabhav Kripna earned his living by taking foods. वेरी गुड। अनुप्रिया बेटा आप एक बार कोशिश करो, व्हाट यू हैव रिटन, टेल मी योर आंसर। Swabhav Kripna earned his living by begging food. स्वभाव कृपना earned his living by begging। एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
जब By begging आपका food. यूज करते हैं उसके बाद आईएनजी फॉर्म ही आता है अगर कोई वर्ब यूज करते हैं तो। स्वभाव कृपना अर्न हिज By begging food. बाय बेगिंग, करेक्ट आंसर। इसको लिखते हैं। स्वभाव ओके, दिस इज द आंसर। यही करेक्ट आंसर है। लगभग सभी लोगों ने लिखा होगा। इट इज वेरी इजी। Yes, sir. चलो now let's move ahead on the next question. The next question is what are the things the man dreamed of buying? What are the things? ऐसी कौन-कौन सी चीजें थी? The man dreamed of buying, जो मैन ने ड्रीम देखा था, सपना देखा था। अनुप्रिया। Are goats, cows, buffaloes, mares, palanquin, houses, गोट देखा था, buffaloes, cows, mares, और क्या? Sir, my turn. बड़ा सा घर। यस, अमन वर्मा। Sir, may I tell? Am I tell? Sir, the man dreamed of buying. Sir, the man dreamed of buying cows, goats, buffaloes, horses, and mares, platypus, house, etc. बेटा जो भी हैंड रेस किए रहते हैं, जो बच्चे प्रॉपर उनका वीडियो ऑन रहता है, मैं उनका नाम लेता हूं और जब नाम लूं तभी आपको बताना है। कई सारे बच्चे वीडियो बंद किए हैं तो उनका तो नाम मैं नहीं लेने वाला। अगर वीडियो बंद किए हैं तो प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं आपको कैसे अलाउ कर सकता हूं? आपका पिक्चर ही नहीं दिख रहा है, दैट मींस कि यू आर नॉट कनेक्टेड वेल, या तो आपने अपना वीडियो बंद किया है। तो आपका जब इंटरनेट से आप प्रॉपर कनेक्टेड ही नहीं है, आपका पिक्चर ही नहीं दिख रहा है, तो मैं आपका नाम लेकर के समय थोड़ा वेस्ट कर सकता हूं। So whoever want to give the answer, they have to raise their hand and have to wait their chance. One by one, I will give to everybody. तनिष्का का हो गया, अमन से भी बोल दिया गया, अनुप्रिया से भी बोल दिया। I will move ahead to the next persons. फिलहाल अमन वर्मा, आपने क्या बोला? आपने बताया कुछ चीजों के बारे में। Sir, the man dreamed of buying cows, goats, buffaloes, horses, and mares, platypus, house, etc. उसने सोचा खरीदने के लिए सोचा था ना? 2 goats. Sir, etc. Yes, sir. Cows. Yes, sir. Buffaloes, mares, and then a huge. यही तो सोचा था उसने। Yes, यही तो sir. सपना देखा था। Yes, sir. Now, move ahead on the next question. Find the meaning of these words from the story. एक क्वेश्चन था, एक वर्ड आया था आपके स्टोरी में ही, ब्रिमिंग। ये ब्रिमिंग मीन्स क्या होता है? क्या बताया गया है? कहाँ पे आया था अभी ये ब्रिमिंग? कहाँ पे आया था? Sir, brimming with rice. Sir, brimming with rice. Second line. Sir, brimming with rice. That pot is indeed brimming with the rice. ये brimming क्या होता है? Sir, my tell. No. बेटा am I tell अगर आप, मैंने क्या बोला? You should raise only you should raise your hand. You should not interrupt by saying am I tell. पहली बात तो गलत प्रोनाउंसिएशन में am I tell क्या? What is this? No, sir, may I tell. Sir, may I tell. होता है। और टेल को तुम टेल को टेल बोलते हो, कई बार आपको टोका गया है, फिर भी टेल ही बोलते हो। टेल में पूंछ होता है, टेल और टेल में अंतर होता है। सौरभ कनौजिया बताइए आप। Sir, full. Sir, full. Sir, full of. Brimming with the rice, full. Very good. आपने अच्छा कोशिश किया लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए। और कौन कोशिश करेगा? अनुप्रिया। Fulling. क्या होगा बेटा? फुल मतलब इस तरीके से फुल हुआ कि इट फिल्ड विद द एज ऑफ द पॉट। वो पॉट के बिल्कुल ऊपर एज तक किनारे तक पूरा भरा हुआ था पूरी तरीके से। ब्रिमफुल। Yes, sir. Full of. That means filled to the edge of the pot. Filled to the edge of. Okay.
filled with the, इसको क्या लिखेंगे? We can write completely full. आप कह सकते हैं completely full. full of नहीं बोल सकते. बेटा full off कर दीजिए, but full is enough. Now the second word is the famine. What does it mean, Tanishka? Sir, dry. Dry. बेटा विकास वर्मा आप बताइए. Sir, dry. ड्राई मीन सूखा होता है, फेमाइन मीन सूखा नहीं होता है. सर फेमाइन में सूखा होता है. नहीं बेटा सूखा नहीं होता, एक ही समय का काम होता है. ड्रॉट मीन होता है सूखा, ठीक है. फेमाइन मीन पानी की कमी पड़ जाए उस समय. फेमाइन मीन्स अ टाइम व्हेन देयर इज नो रेन एंड नो क्रॉप्स, यानी बारिश ही ना हो, फसल ही ना हो, तो उसको बोलते हैं अकाल. सूखा मतलब सूखा की इंग्लिश होगा ड्रॉट. सूखा पड़ जाने से कोई दिक्कत नहीं, सूखा पड़ जाता है तो अकाल नहीं. लेकिन सूखा इतना लंबे समय तक पड़ जाए, इतने लंबे समय तक बारिश ना हो कि वहां पे अकाल पड़ जाए, कोई फसल ही ना बचे लोगों के पास. देयर इज नो रेन नो क्रॉप्स. जब क्रॉप्स की कमी होने लगे, देन फेमाइन वुड बी. एक समय का एक तरीके, एक समय होता है जब देयर इज नो क्रॉप्स, क्रॉप्स नहीं होंगे तो एक तरीके से भोजन के लिए आपका काल पड़ जाएगा, भोजन लोगों के पास नहीं होंगे. तो दैट इज द टाइम. ओके, उस समय को हम बोलेंगे फेमाइन. समझ में आया? Yes, sir. You can write the answer of this word. ऐसे लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं. A time when there is no rain and no crops. एक तरीके से अकाल पड़ जाए. सूखा नहीं, सूखा पड़ने से कोई दिक्कत, अकाल पड़ जाए. ये क्रॉप्स आपको दिख रहा है बेटा कि नहीं? सर दिख रहा है. No, yes, sir. अभी दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो भी. Now the third word is the partial. What does it mean? इसका मतलब क्या है? Sir, very nice. Very nice. Aman Verma is telling very nice. Like Anupriya, extremely large. Atul Chauhan, Sir, For younger. क्या होगा बेटा? For younger. What you were telling? Pardon again. Pardon please. For younger. Elder, पता नहीं क्या बोल रहे हो. It is not clear. मैं बोल रहा हूँ younger. Huge, बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर. Like a Yes. palace. Huge yes, like sir. a, You. huge like a palace. Okay. extremely large नहीं बोल सकते. Large भी लिख सकते हैं. Large is also correct. Large is also correct. I hope सभी extremely लोगों large. से मिलता जुलता हुआ अगर आंसर लिखा होगा तो सही है, कोई परेशानी नहीं है. ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आप करें, बट हाँ जो इसका अर्थ मिलना चाहिए दैट इज वुड बी द सेम. बिल्कुल इसी से मिलता जुलता हुआ आंसर होना चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज सुमासरमन? ये कौन है? इन दिस स्टोरी हु इज दिस? रुचि. Sir, from is so Samosa is a song that he thinking on dream to marry after married and चलिए ठीक है, And- बिल्कुल सही सही पकड़ा आपने, सही पकड़ा आपने, बट थोड़ा सा सेंटेंस कुछ ज्यादा लंबा खींच रही है. सचिन चौहान, व्हाट इज योर आंसर? लिखा है कि नहीं आपने? सचिन चौहान नहीं बोलेंगे. दिव्या आप बताइए. सचिन चौहान अगर बोल देंगे तो एहसान मेरे ऊपर कर देंगे, उनको लगता है मेरा नुकसान हो जाएगा. बेटा मेरा नुकसान क्यों कर, नहीं बोलोगे तो मेरा नुकसान होगा.
नहीं, अच्छा मेरा नुकसान अगर आप बोलोगे, नहीं मेरा नुकसान कभी नहीं होगा, तुम बोलो चाहे ना बोलो, नुकसान तुम अपना ही कर रहे हो, नहीं बोलने से थोड़ा बहुत फिलहाल मेरा भी नुकसान है, पता नहीं कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। सचिन चौहान माइक ऑन करिए, सचिन चौहान माइक ऑन करिए, या मैं आपको बाहर करूं, मैं क्लास से नहीं आपको ग्रुप से भी बाहर करूंगा, ध्यान रखिएगा। Now, who is this? Yes, sir. Who is this? Who is the Somas Raman? Tell me the answer of this question. Sir, Somas was the Shivalik dream son. तनिष्का बताइए। Sir, Subhas is his child that he dreamed. नहीं नहीं, जो कि सपने में उसका बच्चा नहीं था, वो सपने में जो देख रहा था बच्चे का, उसका नाम था। ठीक है, चलो ठीक है, सभी लोगों ने लिखा है। कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है? सचिन भी सही ही बता रहे थे, बहुत बहुत ही गंदी आदत है कि कुछ भी ना बोलना। बेटा आप क्लास क्यों करते हो? अगर आप बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? आप क्या इसको लगते हैं? इट इज द, ये क्या है? हु इज सोमाश्रम? इट इज द नेम ऑफ, इट इज द नेम ऑफ its sons. Yeah, it is the name of, Yes, sir. His son. it is the name of the man, या आप उस मैन का नाम लिख लीजिए, उसका नाम बड़ा है इसलिए मैं लिख दूं द मैन्स सन। Sir, Swabhav Kripna's dream And his, dream what he think, what he was thinking, he was dreaming, ड्रीमिंग होगा, थिंकिंग नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. what is dreaming while seeing the pot. Okay, sir. Thank you. here it is the name of the man's son, it is the name of the man's नहीं होगा, it is also not clear, it is the name of the Sons. man's son. Yes, sir. What he was dreaming, what the man was dreaming, what the man was dreaming while seeing the pot of rice, राइस और देखते हुए जो ड्रीम किया था। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यंग हॉर्स कार्ड। बेटा इससे मिलता जुलता हुआ अगर आप लोगों ने आंसर लिखा है, इरेज करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज करेक्ट। आप लोगों ने अगर ये लिखा है इट वाज द नेम ऑफ हिज चाइल्ड्स व्हाट ही वाज ड्रीमिंग, तो दैट इज आल्सो करेक्ट। आप अपने पैराग्राफ से आपने आंसर बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑल दोज आंसर्स आर करेक्ट। इसको बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है, बट हाँ ये आप जान के रहिए, ये कौन था? ये उस लड़के का नाम था जो सपने में देख रहा था। ठीक है, Sir, Swabhav Kripna's dream son. व्हाट इज अ यंग हॉर्स कार्ड? व्हाट इज अ यंग हॉर्स कार्ड क्या कहलाता है? तो मैं जिसका नाम उसको अभी नहीं, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला हो उससे मैं पूछूंगा। आकांक्षा पांडे, अलसबा, अनिल मौर्य, सचिन, अतुल चौहान, आप चारों में से किसी को बोलना है? सचिन चौहान ने तो वीडियो ही बंद कर लिया, क्या बात है। अतुल तो कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर्ली, बट सचिन ने वीडियो बंद किया है। अनिल, अलसबा, सचिन, आकांक्षा पांडे, व्हाट इज द यंग हॉर्स कार्ड? जो हॉर्स के बच्चे को क्या क्या कहलाता है? हॉर्स का जो बच्चा है उसको क्या बोलते हैं? आप ही दोनों को बताना है, बाकी मैं ये और किसी और से नहीं पूछूंगा। यहाँ पे लिखा भी है, मैं इधर बता भी दे रहा हूं, यहीं पे लिखा है। अभी पूछा नहीं हूं मैं, जो आप जिन तीनों चारों का नाम लिया उनमें से अगर किसी को बताना है तो वो बता सकता है, दूसरा बच्चा नहीं बताना चाहिए। क्या होगा? कौन बोल रहा है? अलसबा, यस, अलसबा इज टेलिंग द आंसर। Yes, sir. इट इज रिटन हियर, इट इज रिटन हियर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, Yes, sir. Yes, sir.
क्या होगा? FOAL। The young horse. आप उसको कंप्लीट ले, द यंग हॉर्स कॉल्ड अ फूल, द यंग हॉर्स कॉल्ड फूल, fool. आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दैट इज, these are the answers of from the story. So this is how, अच्छा, there is one more questions. There is one more question. Identify a word. आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से आपको एक वर्ड आइडेंटिफाई करना है, खोजना है, पता करना है। क्या? दैट हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ अ पर्सन्स ब्यूटी, जो कि यूज किया गया है क्या करने के लिए? टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ अ पर्सन्स ब्यूटी, जो किसी भी पर्सन की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया हो। हाउ मेनी हैव आइडेंटिफाइड? अमन वर्मा बताइए। Sir, a word from the story that has been used to describe the degree of a person's beauty is extremely. एक्सट्रीमली अमन वर्मा बोल रहे हैं। तनिष्का आप बताइए। बेटा टेल मी ओनली द वर्ड, सिर्फ मुझे वर्ड बता दो, दैट इज इनफ। Sir, extremely beautiful and sir. वेरी गुड, देयर आर मेनी वर्ड्स, एक्सट्रीमली ही नहीं है, और भी कई सारे वर्ड्स हैं। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और कौन सा बोला बेटा? Sir, sir. वेरी गुड। तो दिस इज द आंसर। आप एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं, इट इज ऑन यू। नाउ अगर आपको उस सारी स्टोरीज को आप पूरा पढ़ें, एक दो वर्ड्स आपको और हो सकता है मिल जाए, आप उसको भी लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, दैट इज बियॉन्ड द स्टोरी, इट इज ऑन यू दैट कि हाउ यू गिव योर आंसर, गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द मैन इन द स्टोरी इज फुलिश? जो स्टोरी में ये मैन था, आदमी था, ये फुलिश था, मूर्ख था? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई। दोनों केस में आपको रीजन बताना है। तनिष्का पहले आप। Sir. यस तनिष्का। अमन वर्मा बताइए। अरे किताब मत पढ़ो महक वाला, महक की किताब में मंगा लूंगा, यहाँ पे बहुत हो गया ऐसा। नो सर, समय की किताब सर मेरे पास नहीं है। अरे ऐसे मुझे सब पता है। चलिए बताइए फिलहाल आप सर ही सच्ची में सर, yes, I think the man in the story is foolish because when he swing our knees in dream, then swing his feet so high that the pot of rice broke and all the rice fell over him. ओके, अमन वर्मा उसको सही मान रहे हैं, So रीजन it ही is बता रहे हैं। beyond the story. Okay, anybody else who want to give the answer of this question? Anybody else? Anupriya? I think the man was in the story because he was packed the pot of the rice over him. Okay, anybody else? अभी अनुप्रिया और अमन वर्मा के बाद अनिल मौर्य। बेटा यू आर नॉट कनेक्टेड वेल, आपका आज पूरी तरीके से पिक्चर ही नहीं दिख रहा है। आई थिंक या तो आपका डेटा पैक खत्म हो गया है, क्योंकि एयरटेल का नेटवर्क गवर्न नहीं रहता। सर नहीं। हाँ बताइए। Sir, yes, I think the man in the story is fool because thinking I will marry an extremely beautiful woman and we will have a son. I shall call him Mosar man. But in the story, every day he would beg for food. Tanishka, also you want to say, Dance, also you want to respond the question. Yes, beta, respond the question. विकास वर्मा, तनिष्का की बात। Sir, I think the man in the story is foolish because he packed the pot of rice over him. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। विकास वर्मा आप बताइए। कोई नो भी सर सर ये सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखेंगे तभी तो पूरा करेंगे। the man in the story is foolish because he packed the food. No, sir. Packed the food. He shall buy a patentical house.
चलो ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट द मैन इन द स्टोरी इज फुलिश। कई सारे बच्चे मान रहे हैं कि नहीं, वो मूर्ख था। ये मूर्खतापूर्ण काम हम लोगों को भी नहीं करना चाहिए। विदाउट वर्क Yes. we cannot imagine, we cannot think for the good result। हम बड़े ऐसे नहीं बन सकते, टॉप ऐसे नहीं कर सकते, पास ऐसे नहीं कर सकते, अच्छे एग्जामिनेशन में, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में को ऐसे नहीं क्वालिफाई कर सकते। सो रादर देन ड्रीमिंग, मतलब ये इस तरीके की ड्रीमिंग, ऐसा नहीं है कि सपने ही ना देखो, सपने देखोगे तभी तो पूरा करोगे। सपने इन द सेंस सब काम छोड़ के सपने नहीं देखना है, यू शुड ड्रीम, बट ऐसा नहीं है काम छोड़ करके सपना देखना शुरू कर दो। यू शुड ड्रीम एंड वर्क अकॉर्डिंगली, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप सोचे, जैसे आप चाहते हो उसको आप जरूर करें। जब आप एक स्टेप करें